ذبح کیا مسنون طریقے پہ تو چوری کا فعل حرام ہے لیکن جانور حلال ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے اس نے چونکہ یہ کیا کہ دیکھا کہ یہ بھائی یہ میں اس کے لیے کچھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہوں، تو اس نے اپنی جائیداد کو کیا کیا کہ اپنے وارثین میں ہبا کر دیا، بخشش کر دیا، تحفۃً دے دیا. یہ فعل غلط ہے لیکن اس کا یہ اقدام درست ہوگا. فعل غلط ہے، اقدام درست ہوگا. اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اب ہاں بولیں بسم اللہ. مگر جو فیل کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ماننے کے بعد جس نے یہ فیل غلط کیا کام تو اس کی اس کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک امکان ہے کیونکہ آپ نے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، یہ اس کو کہتے ہیں ضرر پہنچانا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر اتنے شدت سے عمل پیرا ہیں کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، hurt no one so no one may hurt you. اگر آپ نے بھلے نیک نیتی کے ساتھ کسی کو ہرٹ کیا ہے پھر بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی پیار سے کسی کے اوپر فائر کر دے تو فائر شدہ بندے نے مرنا ہے نو میٹر واٹ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر آپ کسی کو محروم نہ کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو من اللہ اور الی اللہ آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے. اللہ کی طرف سے اللہ کی جانب تفویض یعنی تسلیم اور خود سپردگی کرنی پڑتی ہے. پروردگار میرے ذمہ اتنا فرض تھا میں وہ ادا کر رہا. ان کو ہدایت دینا، ان کو گمراہ رکھنا میرے دستے قدرت میں نہیں. دعا، والدین کی دعا. یس اس کا مطلب تو یہ ہو کہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل. ایک طرف شیطان کو آپ میرا مطلب بیٹ کر رہے ہیں، دوسرے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ادروائز اس کا بنتا نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. بالکل. اللہ کی رضا کے لیے اس کا مطلب یہی ہوا نا سر. بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. اور اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس پر ابھی جو ڈاکٹر صاحب حدیث پڑھ رہے ہیں، میں جب بھی اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں حضرت وحشی کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑپن، ان کی دریا دلی، ان کی وسعت کہ آپ وحشی کو بلا کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل حمزہ کی تفصیل پوچھ رہے ہیں اور اس تفصیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسلام قبول کر رہے ہیں اور قبول کرنے کے بعد فرماتے ہیں هل يستطيع ان تغيب وجهي عني. وحشی کیا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے کبھی میری مبارک احادیث، میرے مبارک سنتیں، میرے مبارک اقوال سننے کے لیے نہ ہو، اور اگر آنا ہو تو بسے پشت آ کر کے سنا کرو، میرے سامنے نہ ہو. جب میں تم کو دیکھوں گا تو مجھے اپنے چچا حمزہ کی یاد ستائے گی. تو اتنا کڑوا جھوٹ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پی کر کے صبر والوں کے لیے ایک اسوہ متعین فرما دیا اور یہ کرنا ہوگا. جی اس میں no other choice. We have no other alternate. دیکھیے ایک اور بات بتائیں. دیکھیں فرعون نے لاکھوں کی تعداد اور دولت اپنی چھوڑی. آپ نے دیکھا وہ سارے خزانے لوٹنے والے قبروں کے جو چور کہلاتے ہیں نا، گریو رابرز، وہ لے گئے. اتنا 1,500 سال کی حکومت اور اتنا سونا کہ برداشت کے قابل نہیں اتنا، وہ سب دولت کسی کے کام نہیں آتی. تو اگر ہم اپنی جو بھی ہمارے پاس وراثت ہے نا، جو بھی ہم چھوڑ کے جائیں گے، وہ کسی کے پاس چند دن بھی نہیں رہے گی. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو صحیح جگہ لگا دے گا. اور ممکن ہے اس وراثت سے جو حلال سے کمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے جو اس والدین کے ساتھ برا کرا اس کو ہدایت دے دے. ہمیں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو حصہ دیں. ہمارے لیے بہت شدید ہوگا. اور کہا ہے اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے بڑی آزمائش کا معاملہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تو وہی تو فتنہ ہے. اور آپ کے لیے امتحان یہی ہے، ہم لوگوں کے لیے امتحان یہ کہ اپنی آئندہ آنے والی اولاد کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے جائیں. چاہے کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں ان کو جوڑتے رہنا چاہیے. وہ ٹوٹتے رہیں، ہماری کوشش ہے جوڑتے رہنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں ان کے بعد رہ سکا 900 سال کی دعوت کے بعد. تو ہم لوگوں کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اور وراثت جو ہے یہ مال کتنا رہے گا. میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں اپنا جاب کرنا بند کر دوں، میرا نہیں خیال کہ 3 مہینے بعد میں اس قابل ہوں گا کہ اس گھر میں اور اس حالات میں رہ سکوں. ہمیں سب کو اپنی نوکریاں کرنی ہیں اور کسی کے پاس کسی کے مال پہ کوئی ہمیشہ امیر نہیں رہ سکتا. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا مال کچھ ہے اس کو فائدہ دے گا. میرا مال اس کو دیں کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے عوض اس کو ہدایت دے دے، اس کو نیکی کی ہدایت دے دے. آپ کو والدین کو سراپا دعا بنایا گیا ہے.
یہ डॉक्टर بات साहब इसका मतलब तो ये हो कि जो भी नियमते हैं उसका हिसाब ही देना है, जवाब भी देना है। बिल्कुल सरकार गौसे पाक के डॉक्टर साहब ये आखिरी बात, फिर आप अगर कुछ फरमाना चाहें। सरकार गौसे पाक को विरासत में 40 दिनार मिले थे ना जी जी तो 40 ही क्यों, 80 दिनार में आपके वालिद का सरमाया फरोख्त हुआ था। इसकी 40 वजह ये है कि आपके एक भाई भी थे, जी उनको 40 उनका नाम अब्दुल्ला था। ठीक, आज दुनिया में आप सर्वे करके निकले, हम कादरी लोग हैं, हम जिलानी लोग हैं, यानी नस्ली गौस पाक की औलाद है। आप सर्वे करके निकले कि गौस पाक का जरा शजरे नसब पढ़ के बता दो, और वो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, रजिस्ट्री बोली में खसरा खतौनी, जिसमें बताते हैं कि ये अब्बा के इतने बेटे, दादा के इतने बेटे। आज मतलब 90% ऑफ द सुन्नी पॉपुलेशन दे डू नॉट नो एनी अदर ब्रदर ऑफ सैयदना गौसे आजम। सही क्यों? वरासत इल्म की होती है, माल की नहीं। माल की माल तो आपने देना ही देना है। वबारिसा सुलेमान दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान हुए, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के और भाई बहन नहीं थे? सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। विरासत और इल्म भाई की। बहन थे ना, तो वारिस यही क्यों हुए? मफहूम ये हुआ कि आपने जो माल हासिल किया है वो आपने अपनी औलादों में बांटना है। आपका सही वारिस वो होगा जो आपके इल्मी, रूहानी और आपके उन तमाम अक़दार को बरुए कार लाएगा। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम की नियाबत की, सैयदना अबू बकर ने रसूलुल्लाह की नियाबत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत तमाम अंबिया ने की। इसीलिए रसूलुल्लाह के लिए एक लफ्ज़ पढ़ दें, अन्नबियुल उम्मी, एक्चुअल नबी रसूलुल्लाह है, बाकी तमाम अंबिया रसूलुल्लाह के नायब हैं। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो ये इस फिलोसफी को आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें आ जाएगा। अलवी साहब 1 मिनट में आप प्लीज इसका जवाब दे दें, काफी देर हो रही है, मगरिब का टाइम है। अन हो और अन हा किसके लिए पढ़ा जाता है? अनहो भाईजान मेल पीपल के लिए, ओके, और अनहा फीमेल के लिए। थैंक यू। अच्छा, 2-4 चीज़ें और मैं वजाहत कर दूं। सिर्फ 1 मिनट अपना मैं लूंगा, जी मैं भी लास्ट था। मैं ये कहना चाह रहा था, यही जो विरासत है, ठीक है, विरासत होती है मरने के बाद, मगर यही एक आदमी जो है इसमें अगर वो मरने से पहले ही अपनी औलाद, अपनी वाइफ और जो उसके अपना विरासत में आते हैं उनको मरने से पहले ही उनको दे दे, और वो भी इंसाफ से दे, और फिर वो जिसको भी दे वो सारे खुश हों उस पे, और वो दे, वो अपनी पूरी कोशिश करे 100% कि जिस तरह विरासत में उनको मिलनी है वो पहले ही दे दूं, और सिर्फ जो है कि अपना थोड़ा सा रख ले, अपना हिस्सा जो उसका है 1/3 रख ले, वो बाद में जो बचेगा वो विरासत में वो खुद काट लेंगे, लेकिन बाकी सारा माल उनको अब दे दे, ताकि उनके जो अखराजात हैं या जरूरी हैं, जिनके ऊपर कोई कर्जे हैं, वो अपने उससे पूरे काट ले। लेकिन उसमें ये ना करे कि इसको ज्यादा दे दूं, इसको कम दूं। अगर किसी को थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो सब जो है उसके ऊपर राजी हो कि जिसको ज्यादा मिल रहा है, जिसको नहीं भी मिल रहा, या कोई खुशी से कहता है मुझे कम चाहिए, या वो अपना हिस्सा दूसरे को दे देता है, उनकी मर्जी, अपनी मर्जी से। वालद जो है अपना वो नहीं कर रहा। इस तरह सारे ये क्या कर सकता है? इसमें कोई जरूरी है कि आदमी विरासत में सारा छोड़ के जाए? अगर वारिसिन राजी है डॉक्टर साहब, तमाम वारिसिन, वो कर सकता है अगर वो राजी हो तो। और अगर ये हो कि नहीं साहब, अच्छा, वारिसिन अगर राजी है तो वो कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अंडर द कैटेगरी ऑफ हिबा आएगा। उसके इंतकाल के बाद अगर मतलब एक टोपी छोड़ी है, एक बनियान छोड़ा है, एक जूता छोड़ा है, उसके ऊपर कानून विरासत का नफाज होगा। इसमें एक और बात है डॉक्टर साहब, ज़रा गौर फरमाइएगा। हमने बार बार ये बात करी, अलवी साहब ने जो शरई हीला बताया कि आप ये कर सकते हैं कि ज़िंदगी में दे दें, हकीकत बात यह है कि किसी की ज़िंदगी का किसी को नहीं पता। आज आपने अपनी दौलत बांट दी, कल बहुएं, बेटियां और दामाद जो है ना वो आपको घर से बाहर खड़ा कर देंगे, आपके पास रहने को जगह नहीं होगी। ये बात का ख्याल रखें। जो औलाद ज़िंदगी में, दुनिया में कभी भी औलाद पैसा नहीं देती लौटा कर बाप माँ को, तो शरीयत ने कहा है विरासत जो है ना वो मरने के बाद है। विरासत का मतलब ही वही है, ज़िंदगी में आप जो करें आपका माल है, आप इस चक्कर में मत पड़ें कि मैं इसको दे दूँ उसको दे दूँ, जिसको देना है दे दें, आपका ये अपना माल है। लेकिन ये ना करें कि एक को दें दूसरे को ना दें, ये अदल नहीं है। अदल ये है कि सबको दें। अगर एक औलाद से नाराज़ हैं तो उसको समझाएं कि देख मैं तेरा भला करना चाहता हूँ, नहीं मानता खैर है, लेकिन करते रहें, लेकिन सबके लिए। दूसरा, देयर इज़ ए क्वेश्चन इज आस्क इन द चैट, आई हैव ए क्वेश्चन, हाउ क्विकली डज द इनहेरिटेंस
need to be distributed after the person is buried and the debts are paid? Okay, the answer is very simple, as soon as possible, but then there are conditions. If a man died and his wife is pregnant with a baby, then the inheritance will be postponed till the baby is born. Whether the baby is alive, number one, if the baby is alive, then that baby is a part of inheritance. And if the baby is a boy, his share will be different than the girl's share. So you need to understand that thing. So inheritance have to be delayed in certain condition, but otherwise it is to be distributed as early as possible, and it should not be delayed. Otherwise you will be liable because you do not know. Now, if a son is dead, suppose if a man has 3 sons, one of them had died, his children will not get the inheritance, the dead son. Inheritance is for the living people, living children. Just to be understood. Inheritance is not. तो वो क्या होगा? अच्छा, आपके एक औलाद का इंतकाल हो गया और उसके बच्चे हैं, तो what you should do with them? You give them in the will. That's where the 1/3 will apply. In your life you can give them more and make them that they will get the will after you die, that the children of the deceased son or daughter will benefit. This is a very technical point to understand. Islam is really giving a very beautiful passage. एक चीज और भी, अगर आपको मतलब ये है और वारिसीन इस बात की इजाजत दे तो आपको एक हदीस सुन लो और इसको याद कर लो। ये इसको इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया वाजिबुल हिफ्ज। सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर जब अमीरुल मोमिनीन थे, और अमीरुल मोमिनीन होने से पहले आप हिजाज के गवर्नर थे। डॉक्टर शेख साहब, आप सुन रहे हैं जी? तो आपने क्या किया कि आपके वालिद हजरत जुबैर का इंतकाल हुआ एंड ही वाज द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ द टाइम। तो आपने अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने तमाम वारिसीन को बुलाया अपने महल में और कहने लगे कि बाबा बहुत मालदार आदमी थे, और जो ताजिर आदमी होता है, व्यापारी, बिजनेसमैन, उसके लोगों से लेन देन होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि कर्ज मुअल्लक रहता है, जब तक आप मरहूम के कर्जों को अदा ना कर दें उसके अमाल मुअल्लक रहते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम हज के सीजन में ऐलान करते हैं कि बाबा ने अगर किसी से कर्जा लिया हो या कोई लेन देन की हो उसके, तो आपने 4 साल तक डिले किया, 4 साल के बाद उनके विरासत को आपने बांटा। तो अब ये नहीं कि अब्बा आज इंतकाल करते हैं और परसों के रोज मतलब ये है कि मीटिंग बुलाओ और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके कर्जे अदा करना फर्ज है। अलवी साहब, एक बहुत अहम क्वेश्चन आया मेरे ज़हन में। इंसान की बेटी है, एक बेटा एक बेटी है। बेटी जो कहती है वो दहेज की डिमांड करती है, उसके ससुराल वाले, उसके खामद, वो खुद भी कि मुझे इतना आप जेवर डाले, कि गाड़ी लेके दे, घर लेके दे, तब मेरी शादी होगी, मैंने करनी है। तो वो कर देता है बाप उसके लिए। बाकी जो ज्यादा तो बनती है बचती है तो उसका बेटा एक है, मगर वो उसे कैसे, वो उसको भी उसके बराबर वो डिमांड नहीं करता बेटा, मगर बेटी डिमांड करती है अपनी ज्यादा से, तो उसका हिस्सा उसे दे देता है। उसके बाद उसका हिस्सा बचता है जब तक वो पूरा ना बेटे का। मैं जवाब दूं अलवी साहब? आप दें। अगर तो अपनी जिंदगी में बाप ने उसके लिए कार खरीद दिया, मकान खरीद दिया, जमीनें खरीद दी, जेवरात, ये तमाम चीजें दे दी, ये तमाम चीजें वो अपनी जिंदगी में देंगे, वो बतौर तोहफा, बतौर हिबा, बतौर बख्शिश होगा। विरासत मरने के बाद होगी, विरासत मरने के बाद होगी। और अगर हाँ उस वक्त अगर वो चाहे तो बेटा बेटी दोनों को बिठा के कह दे कि भाई देखो ऐसी सिचुएशन है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका हिस्सा मैं इसी वक्त इसको दे दूं। समझ रहे हैं आप? तो जो मैंने आपको हिले शरई बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उस हिले शरई को बरूए कार ला करके अगर वो चाहता है तो वो कर सकता है। अदरवाइज आपने जिंदगी में बेटी को जो भी दिया है वो तोहफा, हिबा, बख्शिश और गिफ्ट में चला जाएगा। इसके कानून विरासत नाफिज होगा बाद अज़ मौत। इसके अलावा एक बात और भी अलवी साहब के, अगर बेटी को जितना दिया है ना जहेज के नाम पर, बाप पे फर्ज है कि बेटे को भी उतना ही देगा। जी हाँ, ये अदल है। जितना अगर एक आदमी ने अपनी बेटी को 1000 रुपया दिया है शादी में उसकी जहेज में या उसके ससुराल की वजह से, तो बेटे को भी 1000 रुपया देना पड़ेगा उसकी जिंदगी में, क्योंकि ये दोनों आदल है। हिबा में आप विरासत का कानून ना नाफिज करिएगा कि मैंने बेटी को 1000 दिया तो बेटे को 2000 दिया। हिबा और बख्शिश में इक्वल ट्रीटमेंट को आप मेंटेन कर सकते हैं।
वरासत में फिर ये कानून वरासत के तहत मतलब मेल फीमेल का डिवीजन रखा गया। अच्छा, अगर मरने से पहले दिया तो और मैंने ये कहा कि मैं इंसाफ करके सबको दूं उसी तरह से जितना मरने के बाद इनको मिलेगा, बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा। नहीं। तो लेकिन मरने से पहले इक्वल दोनों को दे सकते हैं। इक्वल होगा, जिंदगी में इक्वल होगा, मरने के बाद शरीयत के मुताबिक होगा। डॉक्टर साहब ये कानून आप याद रखें, अगर आप तोहफा, हिबा, बख्शिश, गिफ्ट आप कर रहे हैं उसमें आपको बराबरी देखना है, और अगर वरासत के कानून को लेकर के चल रहे हैं तो फिर उसमें लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटों का दुगुना। आप बुजुर्ग साहिबान, आप लोग बुजुर्ग लोग बार बार मरने के बाद वाले अहकाम को ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं, बड़ी गलती कर रहे हैं। कतई ऐसा ना करें। ज़िंदगी में बेटा बेटी का हिस्सा बराबर है, बराबर है, बराबर है। मरने के बाद जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया फिर वो लगेगा। ये तो वोट ही हुए ना फिर डॉक्टर साहब, जैसे वोट डालते हैं। आप उसको। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि हम रहते अमेरिका में हैं, जब यहाँ का कानून लागू होता है किसी फर्द के फौत होने के बाद, वो तो जायदाद औरत को चली जाती है, उसमें कौन लेगा इसका, उसका स्टेप कैसे आएगा कि औलाद को क्या दिया जाए या ना दिया जाए? हज़रत, इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीक़ा है, आप अपनी विरासत को लिख दें कि मुझे इस्लामी शरीयत के मुताबिक मेरी विरासत बटेगी। और औरतों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी बहुत सारी सिस्टर जो हैं आजकल जॉबें करती हैं और शौहर की हेल्प करती हैं फाइनेंस में। तो मेरी बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर शौहर की मदद करना है तो घर का जो कर्ज़ लेते हैं ना बैंक से, जो घर का लोन है उसमें लगाएं, खाने में ना लगाएं, बिजली पानी में ना लगाएं अपना हिस्सा जो आपने कमाया है, क्योंकि वो आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन घर जो होता है मरने के बाद औलाद की विरासत होता है, बीवी का नहीं होता। शरई तौर पे बात कर रहा हूँ। तो आपकी बीवी ये कह सकती है कि मैं इसमें पार्टनर हूँ, इतना मेरा कंट्रीब्यूशन है घर में, तो वो शरई तौर पे हो सकता है। और वो शरई के अलावा अमेरिकन सिस्टम में भी वो अपना क्लेम कर सकती है। ये बात आप इंपॉर्टेंट समझ लें। कई बहनें जो हैं वो अपने घर में जो है वो छोटे मोटे खर्चे करती हैं, छोटे मोटे नहीं करें, एसेट्स में इन्वेस्ट करें अपने शौहर की। सर ये तो आप घर में लड़ाई डालने वाली बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, लड़ाई की बात नहीं है। घर का देखिए, शौहर की जिम्मेदारी है नान नफका। तो अगर आदमी इतना कमा रहा है, लेकिन अगर वो देना चाहे तो अपना माल दे सकती है। लेकिन जैसे आज अगर किसी आदमी का इंतकाल होता है और घर के अंदर, अब वो घर की मालिका नहीं रह सकती, उसके बच्चे चाहें तो उसको घर से निकाल सकते हैं, शरई तौर पे भी और अमेरिकन तौर पे भी। वो कहेंगे इनहेरिटेंस में ये घर हमारा है, माँ का घर नहीं होता। जब औरत अपनी मर्जी से जॉब करती है, अपनी मर्जी से अपने घर वालों पे, पेकों पे, बाप पे, वालिद पे, भाइयों पे खर्च करती है बगैर खामद को पूछे, तो वहाँ ये कानून कैसे लागू हो? नहीं, वो बीवी का माल अपना कमाया हुआ होता है, उसका कोई हक नहीं है मर्द का। औरत मर्द के पॉकेट में हाथ डाल सकती है, मर्द बीवी के पर्स में हाथ नहीं डाल सकता। ये एक बयान, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपने अपने औरतों को अपने निकाह में कबूल किया रोटी, कपड़ा और मकान के एवज में, तो आप उनके जिम्मेदार हैं। अगर बीवी करोड़पति है, ठीक, और वो अगर एक पैसा भी नहीं देती है, ये उसका हक है। और शौहर अगर अपनी बीवी को सोने का नवाला खिलाता है तो ये शौहर के ऊपर फर्ज है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आप मेहनत, मशक्कत, मजदूरी करके अगर एक नवाला भी बीवी बच्चों को खिलाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको सदक़े का सवाब अता फरमाता है। अभी वो हदीस पढ़ी ना कि आप उसके अपने हाथ से निवाला उसके मुंह में डालें। बीवी का नाम ज़ैनब था, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फुक़राए सहाबा में से थे जिनके ऊपर फ़िक़्ह हनफी का दारोमदार है। उनकी बीवी का नाम ज़ैनब था। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी हदीस पाक की रोशनी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा कि आप जाकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि अल्लाह के रसूल, अगर हम अपने शौहरों पर पैसे खर्च करें या हम अपने शौहरों को ज़कात दें, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शर्म और हया के बाइस ना गए। उन्होंने फरमाया कि आप जाकर के खुद पूछ लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको अपने शौहरों पे खर्च करने के लिए डबल अजर अता फरमाएगा। एक अजर सदक़े का, दूसरा अजर सिला रहमी का। सिला रहमी का। ये
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इसके लिए फरमाया अस्सदक़ा अलल मिस्किन सदक़ा व अला ज़िर रहमन सदक़ान सदक़तुन वसिला। तो ये अगर वो कुछ भी करती हैं, यानी मतलब ये है कि फिर डॉक्टर शेख जो है एक मरतबा मजाक उड़ा रहे थे, अगर वो एक गिलास पानी ला करके शौहर को देती हैं तो ये उनका एहसान है। उनके फराइज में से हमारी रोटी पकाना या हमारे कपड़े धुल करके इस्त्री करना नहीं है। इसीलिए फरमाया कि जो औरत, इसीलिए फरमाया ना जिसका शौहर से राजी वो जन्नत में 8 दरवाज़ों में से किसी में भी दाखिल हो जाए। रोटी पिला देती हैं, चाय बना के दे देती हैं, पानी पिलाती हैं, वरना ये हमारे फराइज में से थे। जरा आस्था बोलें प्लीज। ये बयान जी इंशाल्लाह आपने बड़ा आपने ना जी तालीमी है, तो वी शुड कंटिन्यू यू नो नेक्स्ट वीक आपने। अभी इसमें और भी डिटेल्स हैं जो मैंने नहीं बयान करी, इंशाल्लाह अगले इसमें मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा कि इनमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है ना उसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू। देखिए ये फैमिलियों में दरवाजा अपना बंद कर लो घुट के, बाहर आवाज ही ना जावे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह को शुक्रिया। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना वला